Good morning, students. Welcome in my YouTube channel Rosalind DNA Classes, and today I will discuss with you about the permanent tissue. So first of all, we should define this permanent tissue. Before this, we have learnt about the meristematic tissue. So those who have not seen the video of meristematic tissue, they can go to the channel and they can watch it. So from meristematic tissue, all these different types of tissues that we are calling permanent tissue are formed, isn't it? And the properties of the permanent tissue, they will not change their shape and size. That's why they are permanent, and they will not further go for cell division also. That's why. So this permanent tissue, it is of two types, as I have written: simple permanent tissue and complex permanent tissue. So under the heading of simple permanent tissue, we have to read parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. And under the heading of complex, so only two we have to read, that is a xylem and phloem. So simple permanent tissue, why we are telling it simple permanent? Because whatever the types of tissues under the heading of simple permanent tissue, they are only made up of one type of cell. Either it is parenchyma, collenchyma or sclerenchyma, they are made up of one type of cell. That's why we have called simple permanent tissue. Complex permanent tissue means xylem and phloem. So these xylem and phloem are made up of more than one type of cell. Means not a single type of cell is present in xylem or phloem. Xylem and phloem have 4 to 5 different types of cells. That's why they are called complex permanent tissue. And this is the example of tissue where we can get different types of cells combined together, work together, isn't it? And they are working for a particular performance. Like xylem. Xylem is responsible for only movement of water and minerals, nothing else. Yet it has 4 or 5 different types of cells. Similarly, phloem. Phloem is transporting food materials, isn't it? But still it has 4 or 5 different types of cells. So these 4 or 5 different types of cells working together and completing or achieving a one particular task. So I hope you have understood. So we should move to our next page. So now I have given one new heading, that is a ground tissue. See that this heading is not present in our book, but the topics included in under the heading of ground tissue that we have to read. That's why I have taken this ground tissue, so that your understanding should be well developed and it will be systematic. So underground tissue means the tissue, the ground tissue of plants includes all tissues. इसमें सारे टिश्यूज इंक्लूड हैं एक्सेप्ट डर्मल टिश्यू. डर्मल मीन्स जो हमारे बॉडी के सरफेस पर हैं. सिमिलरली जो प्लांट्स के बॉडी के सरफेस पर हैं, स्टेम के ऊपर है, लीफ के ऊपर है, इजंट इट, रूट के ऊपर है. रूट का जो अपर लेयर है, स्टेम का जो अपर लेयर है, लीफ का जो अपर लेयर है, दे आर डर्मल टिश्यू. इन आवर केस इन ह्यूमन बॉडी, आप देखिए मेरे हैंड्स को, मेरे हैंड्स के ऊपर जो ये स्किन है, दैट इज कॉल्ड डर्मल पार्ट, इजंट इट. सो डर्मल और वस्कुलर टिश्यू इसमें इंक्लूड नहीं होंगे. ग्राउंड टिश्यू में सभी टिश्यू इंक्लूड होंगे एक्सेप्ट डर्मल और वस्कुलर टिश्यू को छोड़कर. वस्कुलर टिश्यू का मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम, जो फ्लूइड्स को प्लांट्स के बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं. दैट्स व्हाई नेम इज गिवन वस्कुलर, है ना. हमारे बॉडी में भी वस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है विथ हार्ट, इजंट इट. So it can be divided into 3 types based on the nature of cell walls. यानी सेल वॉल्स के अकॉर्डिंग, सेल वॉल के नेचर के आधार पर हमने ग्राउंड टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. ध्यान से समझिएगा. अब ये 3 पार्ट कौन है? तो पहला पेरेन्काइमा है, दूसरा कौन होगा? तो कोलेनकाइमा होगा, नहीं फिर स्क्लेरेन्काइमा होगा. सो पेरेन्काइमा में देखेंगे अगर हम, तो पेरेन्काइमा टिश्यू को अगर हम देखेंगे तो पेरेन्काइमेटस टिश्यूज आर आइसोडायमेट्रिक इन नेचर, यानी लगभग इनके सारे सेल एक जैसे होते हैं. थिन सेल वॉल होता है एंड मोर इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट इन दिस पेरेन्काइमेटस सेल. आप समझिएगा. सो देखिए, इट इज कंटिन्यूअस टिश्यू इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स एज वेल एज लीव्स, फ्रूट्स, पल्प एंड सीड एंडोस्पर्म्स. सो यहाँ पर कुछ नए टर्म आ रहे हैं, जैसे कॉर्टेक्स है, मेडुला है. सो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इसको समझना होगा. टीएस ऑफ स्टेम, यानी आप किसी प्लांट का पतला सा स्टेम लीजिए, सॉफ्ट स्टेम, टेंडर स्टेम, और उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटिए. ट्रांसवर्स सेक्शन मीन्स सपोज अगर ये पेन को हम समझ ले कोई स्टेम है, और आई कैन टेक वन एग्जांपल बट इट इज नॉट प्रेजेंट हियर. सो सपोज आप इसको समझ ले कोई इस पेन को कि ये स्टेम है, और स्टेम को आप इस तरह से ब्लेड से कट करेंगे, ऊपर से स्लाइस लेंगे, देन इट विल बी
द ट्रांसवर्स सेक्शन, और इस तरह से आपको स्लाइस मिलेंगे। और इस स्लाइस में मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी की तरफ लिखा है। तो सेंटर में जो सबसे अंदर की तरफ सेल है उस सेल का नाम है पिथ, उसके बाहर जो 2 नंबर उसका नाम है पेरिसाइकिल, 3 नंबर का नाम है जाइलम, 4 नंबर का नाम है फ्लोएम, फिर उसके बाद स्क्लेनकाइमा, फिर 6 नंबर कॉर्टेक्स, और फिर लास्ट में जो सरफेस पर है दैट इज द एपिडर्मिस और द डर्मल लेयर, इजंट इट? I hope you have understood. So medulla is written here, isn't it? So medulla of the stem. So medulla is present near about this cortex region. So as well as in leaves, fruit pulp. Fruit pulp means जो fruits का जो soft part हम कहते हैं that we call pulp. And seed endosperm. Seed के endosperm यानी seed में जो oils, थोड़े बहुत जो ऑयल्स मिलते हैं या थोड़े बहुत जो स्लाइटली बिल्कुल बहुत ही कम फ्लूइड आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड इंडोस्पर्म। एंड दिस इंडोस्पर्म्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी जब आप किसी सीड को जर्मिनेट कराते हैं तब ये इंडोस्पर्म उस सीड को जर्मिनेट होने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिससे स्प्राउट्स बाहर आते हैं, जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर रेडिकल, देन फिर ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आएगा प्लूम्यूल, इजंट इट? सो हम उनको बाद में डिटेल में देखेंगे। इट कैन अकाउंट फॉर अराउंड 80% ऑफ द लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट में जितने लिविंग सेल्स हैं उसका 80% पेरेन्काइमेटस सेल है। ध्यान से सुनिएगा, प्लांट में जितने भी लिविंग सेल्स हैं, आउट ऑफ ऑल दोज लिविंग सेल्स 80% लिविंग सेल्स आर पेरेन्काइमेटस सेल्स, इजंट इट? सम पेरेन्काइमेटस सेल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ द वस्कुलर टिश्यू, और कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स वस्कुलर टिश्यू के कंपोनेंट है। वस्कुलर टिश्यू अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इज द जाइलम एंड फ्लोएम। सो जाइलम एंड फ्लोएम का कंस्टिट्यूएंट जब आप लास्ट पार्ट पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू का, तो वहां पे देखेंगे कि जाइलम पेरेन्काइमा है, फ्लोएम पेरेन्काइमा है। सो फ्लोएम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा मींस पेरेन्काइमेटस cells are included there, that's why written here. So I hope you have understood. Now we should move toward the next page. Now you can see here I have drawn the structure of the parenchymatous cells. You can see the intercellular space. इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब है दीज सेल्स आर लूजली पैक्ड, यानी ढीले हैं, टाइटली पैक्ड नहीं है। अगर टाइटली पैक्ड होते हैं तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। अब पेरेन्काइमेटस सेल्स को हमने इनके फंक्शंस के अकॉर्डिंगली और इनमें कुछ पिकुलरिटीज होने के कारण 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। क्लोरेन इट इज टेकन फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट, इट इज टेकन फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट मीन्स द पेरेन्काइमेटस सेल्स दैट कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस वी कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। एरेनकाइमा, eren means air, means those parenchymatous cells that contains air cavities, large air cavities are present. So ऐसे parenchymatous cells, ऐसे parenchymatous tissues को हमने कहा erenchyma, and these erenchymatous tissues are present in some plants. I have taken one example, that is the water hyacinth, and the scientific name of this water hyacinth is Eichhornia crassips. So this C will be small, it is the scientific name, binomial nomenclature we will read in diversity in living organism. So where we will see why we are writing separately and underlining it, and the second part of the first letter of the second part will be small, it is not capital, it will be small, ठीक है? So Eichhornia crassips, it is also called terror of Bengal, हम इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, यानी बंगाल का आतंक। एंड इट इज ए एक्सोटिक प्लांट, ये एक्सोटिक प्लांट है। एक्सोटिक प्लांट का मतलब क्या है? हमारे देश में ये पहले से नहीं था, हमारे देश के ओरिजिन का नहीं है, इसको ब्रिटिश लोग बाहर से लाए थे। चूंकि ये देखने में खूबसूरत होता है, इसका हिंदी नाम है जलकुंभी, और ये तालाब में, पौंड में बहुत तेजी से फैलता है सरफेस पर, ठीक है? और ये इतनी तेजी से फैलता है कि पूरे के पूरे तालाब या पौंड को, लैक को कवर कर लेता है। एंड इन दिस वे दे यूटिलाइज द डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, एंड इन दिस वे द aquatic organisms living in the water, they have very less amount of dissolved oxygen for their respiration. That's why it is called terror of Bengal, क्योंकि बंगाल में ये बहुत ज़्यादा था और बंगाल में फिशेस के कल्चर में ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा था। That's why इसका नाम दिया गया terror of Bengal. So you memorize it. It is a GK question also. So now parenchyma of stem and roots also store nutrients and water. So ये रूट के parenchyma हो या स्टेम के, ये न्यूट्रिएंट्स और वाटर को भी एब्जॉर्ब करके रखते हैं, और ये लिविंग सेल हैं, ध्यान रखिएगा। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। कोलेनकाइमा। सो कोलेनकाइमा दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू। आप कोलेनकाइमा
के पहले स्ट्रक्चर को देख लीजिए, कोलिनकाइमा का स्ट्रक्चर इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स है। तो एक ही तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आपस में एक दूसरे से कंबाइंड किए हुए नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये जो रेड कलर से कॉर्नर्स को दिखा, तो कॉर्नर क्या होते हैं, ज्यादा थिक होते हैं, यानी सेल वॉल इरेगुलरली थिकेंड हुआ कि नहीं, यहाँ पे थिकनेस कुछ है और कॉर्नर पे आके थिकनेस कुछ हो गया, सो इट इज इरेगुलरली थिकेंड आप लिख सकते हैं, इरेगुलरली थिकेंड कौन, तो सेल वॉल। न्यूक्लियस साइड में चूंकि लार्ज वैक्यूल, सेंटर पे ये लार्ज वैक्यूल नहीं, एंड देन इट इज द सेल वॉल। नाउ अब हम इसके स्ट्रक्चर पार्ट पे आते हैं दैट आई हैव डिस्कस्ड। सो सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग इलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिकेंड, जैसा मैंने आपको बताया एट द कॉर्नर्स। देयर इज वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, और यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस देखिए नहीं के बराबर है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट हैं सेल्स, इसलिए इंटरसेलुलर स्पेस नहीं के बराबर है। फंक्शन, तो इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टेम एंड प्लांट्स, बिकॉज इसका सेल वॉल ज़्यादा थिक है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। अलाउज इजी बेंडिंग एंड वेरियस, अलाउ इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स। अभी देखिए अम्फन तूफान चल रहा है तो इसमें ब्रांचेस बहुत तेजी से हिल रहे हैं, टूट के गिर भी सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है, सभी ब्रांच टूट के नहीं गिरते। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कोलिनकाइमेटस टिश्यू, सो इट अलाउज इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक लीफ एंड स्टेम विदाउट ब्रेकिंग, टूटने नहीं देते ये। प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट ऑल्सो, और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। सो आई होप you must have memorized. So now move to the next page. Now sclerenchymatous tissue. So this sclerenchymatous tissue, cells of this tissue are dead. So यहाँ पर जो सिंपल परमानेंट टिश्यू हम देख रहे हैं, यहाँ पर पेरेन्काइमेटस टिश्यू एंड कोलिनकाइमेटस टिश्यू दे वर लिविंग सेल्स नहीं, और जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है दे आर डेड सेल्स, और ये डेड सेल्स हैं लेकिन फिर भी बहुत काम के हैं, सपोर्टिंग है और प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करते हैं। सो दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकेंड ड्यू टू लिग्निन। इनके देखिए लॉन्ग एंड नैरो, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया लॉन्ग एंड नैरो, और इनके वॉल क्या है, थिकेंड होते हैं। वॉल पर क्या होता है, लिग्निन का एक लेयर होता है, मैं रेड कलर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए लिग्निन का एक लेयर होता है, और ये लिग्निन क्या होता है, एक तरह का सीमेंटिंग मटेरियल है और ये इसको हार्ड कर देता है। सो इन दिस में क्या होगा कि कोई भी बैक्टीरिया जो बाहर से, सपोज कीजिए कोई बैक्टीरिया है बाहर में, तो ये इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन इसमें नहीं हो सकता, यानी बैक्टीरिया अंदर एंट्री नहीं ले सकता है, ठीक है। सो इस तरह से ये इन्फेक्शन से भी बच जाता है। इसलिए जो नारियल की रस्सियाँ होती हैं, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, दे आर डेड सेल्स, और ये जल्दी सड़ते नहीं है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लिग्निन, ठीक है। ए केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट्स एज सीमेंट एंड हार्डन्स देम, जिससे कोई भी इन्फेक्शन अंदर नहीं जाएगा और ये डिकम्पोज नहीं होगा। एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, वास्कुलर रीजन ऑफ द स्टेम, लीव्स एंड फ्रूट वॉल्स। अंडरस्टूड? So types of sclerenchyma, there are two types, fibers and sclerids. These fibers are present in seed coat like coconut, hemp, जो आप सन जिसको बोलते हैं, सन की रस्सी, जो ब्राउन कलर का रस्सी जिसको कलकतिया रस्सी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, जूट, जूट का जो पैकेट बनता है जिसमें सीरियल्स को हम भरते हैं, पैक करते हैं। स्क्लेरिड्स, स्क्लेरिड्स आर प्रेजेंट इन द हार्ड सेल्स ऑफ मेनी नट्स, जो भी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं उसके ऊपर जो हार्ड कवरिंग होता है, तो इन दैट हार्ड कवरिंग दैट स्क्लेरिड्स आर प्रेजेंट, है ना, इनका एक नेटवर्क होता है। कभी आप उसको तोड़ के देखिए, जो ग्राउंड जो नट्स हैं, ठीक है, नट्स के ऊपर जो हार्ड कवरिंग है, आप उसको कभी ब्रेक करके देखें तो आप उसको उसमें देखेंगे एक फाइन लाइनिंग्स है कोट के अंदर की तरफ, that are sclerids and that are dead cells that provides protection inside the fruits that is present. Understood? So I hope you have understood. So again I am telling you, don't forget to subscribe the channel. You must subscribe and share it as much as possible. You share this video to all of your friends. Thank you very much.